Hello, good morning students. How are you all? I hope all are good. Have you done your all the remaining questions whatever given you in homework? So students, if you have done, you have to upload all the solved questions in the WhatsApp group. After solving on your notebook, you have to upload the numericals in WhatsApp group. So please upload all the numericals in WhatsApp group, as well as now write your SR number in the comment section of the video, by which I can mark your present absent. Okay. And one more thing, I have started a Google Classroom. So everybody, whoever are watching videos and they are regular and they are interested to get regular numericals, new way numericals, okay, and want to practice accountancy more, and they are interested to study new things in accountancy. So send your Gmail in WhatsApp group. I will add you. I will send a Google Classroom invitation on your Gmail. Okay, so log in from there, and you have to install Google Classroom app in your mobile phones, right? And you have to send your Gmail on my WhatsApp. Okay, and if any problem is there, so then directly beta you call me, or you all of you are having my number, right? So you call me, I will tell you all the things about Google Classroom. Okay, now come to the point. And today we are going to study question number 46 and sorry, question number 6 and 8. See, question number 6, what question 6 is saying? विशाल सोल्ड गुड्स फॉर 7,000 टू मंजू. विशाल ने गुड्स किसको बेच दिए? मंजू को, ऑन जनवरी 5, 2017. और उसके बाद बिल बना दिया. दैट इज़ पेबल आफ्टर 2 मंथ्स. कब पे होना है? 2 मंथ्स के बाद बेटा. ठीक है, तो पहले तो आप ड्यू डेट निकालो, बाकी बात की. देखिए 5 जनवरी आया है, 5 फरवरी एंड 5 मार्च, 2 मंथ्स विल बी कंप्लीटेड. अब 5 मार्च के बाद 6, 7 एंड 8 मार्च विल बी द ड्यू डेट. ओके, 8 मार्च हो गई. बट मंजू accepted विशाल ड्राफ्ट एंड हैंडेड ओवर द सेम टू विशाल आफ्टर acceptance. Vishal immediately discounted the bill with his bank at the rate 12% per annum on the due date, and Manju made her acceptance journalize the above transaction. अब बात समझे इसकी क्या हुई? It is saying कि whenever bill is given to मंजू इमीडिएटली पेड ऑफ. अब अगर कोई भी बेटा बिल बना है ना और इमीडिएटली उसकी पेमेंट हो जा रही है, तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. व्हाट डिस्काउंट? डिस्काउंट क्या होता है? आपको छूट मिल जाएगी. आप नगद खरीदते हो शॉप से ना, तो भी तो शॉपकीपर अगर सारे पैसे तुरंत नगद दे दो तो कुछ छोड़ देता है. तो सेम थिंग विल बी अप्लाइड देयर, राइट? सो व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री व्हेन विशाल सोल्ड गुड्स टू मंजू? फर्स्ट ऑफ प्रिपेयर फॉर्मेट, बुक्स ऑफ विशाल जर्नल. First column is of date, particular, ledger folio, debit amount and credit amount, right? Now on January 5 they sell na, so write date January 5. Manju debit to sales account, it is 7,000. Okay, goods sold to Manju, it will be the narration. Now after that, on the same day she will prepare a bill. So after selling, bill will be prepared to bill receivable account debit to Manju credit चली जाएगी. ओके, immediately she paid amount. ठीक है, तो आपके पास बैंक में पैसा आ जाएगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट. ओके, एंड बिल रिसीवेबल 7,000. तो डिस्काउंट भी मिलेगा, तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, राइट? क्योंकि हमारा खर्चा हो गया ना, हमें पैसे कम मिलेंगे तो. एंड टू बी आर आपका क्रेडिट हो जाता है, कट गया ना क्रेडिट 7,000. एंड शी वॉज पेइंग 12% डिस्काउंट. तो 12, आप सम मोस्ट ऑफ यू आर थिंकिंग दैट हाउ 140 केम. सो देखिए 140 कैसे आएगा? बिल वॉज ऑफ 7,000 एंड 12% इज डिस्काउंट, एंड इट विल बी चार्ज ओनली फॉर 2 months beta. Okay, so 12 will be deducted, 0 so it will be 140. Okay, so you can prepare all these things in the working note for your रिमेंबरिंग. ओके, अगर आपको याद रखना है कैसे आया ये सारी चीज़ें, तो आप वर्किंग नोट में साथ साथ मेरे नोट कर सकते हो. सो दिस वे यू विल गेट 140. सो दैट डिस्काउंटिंग चार्जेस विल बी डेबिटेड 140. अब क्या करोगे? 6860 कैसे आया? 7,000 का बिल था, 140 वॉज डिस्काउंट, तो आप माइनस कर दीजिए. 6,860 आपका बेटा
बैंक में मनी मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज 6860। ओके, टिल हियर इज इट क्लियर। तो दोनों की बुक्स में जर्नल बनाना है, तो जर्नल विशाल की बुक्स में तो बन गया, विशाल वाज सेलिंग, सो सेल्स अकाउंट इज यूज्ड। नाउ वी विल प्रिपेयर जर्नल इन द बुक्स ऑफ मंजू। तो मंजू इज बेटा परचेसिंग ना, जिसकी बुक्स में आप लेजर बनाते हो उसका नाम नहीं आता है, his account will be recorded, right? So here you will prepare the journal of Manju. So Manju is purchasing, so her purchase account will be opened, right? So on January 15 she purchased, sorry, January 5 2017 from Vishal, so journal entry will be purchase account debit to Vishal and narration will be goods purchased from Vishal. Note कर लीजिए जरा. If any problem is there, तो put your problem in the comment, I will tell you. आफ्टर दैट विशाल एक्सेप्टेड बिल, बिल बनेगा ना, तो विशाल हैव टू, बट मंजू हैव टू पे, सो विशाल विल बी डेबिट एंड बिल पेबल विल बी क्रेडिटेड, राइट। नाउ अब मंजू को पेमेंट तो इमीडिएटली तो उसने राइट ऑफ कर दिया था, पर विशाल मंजू की बुक से वो 2 मंथ का बिल था, तो पेमेंट तो 2 मंथ्स के बाद ही क्रेडिट होगी, ठीक है। इमीडिएटली उसने डिस्काउंट करा लिया पेमेंट करके बैंक से, बट कैश का जो पेमेंट है बेटे वो तो ड्यू डेट पर के ही जाके, मैच्योरिटी तो जिस दिन आएगी वो तो मंथ आपको डेट लिखना पड़ेगा ना परचेस वाले बंदे के लिए, उसको रिसीव हो गया, बट इसका क्रेडिट जो है वो सेम डे ना करके वो ड्यू डेट पे ही करेगा, ठीक है। बिल की मैच्योरिटी डेट पे ही आपको दिखानी होती है एंट्री। सो मैच्योरिटी डेट एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, इट विल बी ऑन March 8, सो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड दिस विल बी 7000, तो होल 7000 अमाउंट विल बी एंड ड्यू ऑन मैच्योरिटी। यहाँ पे कोई डिस्काउंट का लफड़ा नहीं रहेगा, ओके। सो इज इट क्लियर टिल हियर, एनी डाउट? नाउ बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. What is question number 8? B owed 5100 to A. On 15 January 2017, he accepted a bill for 5000 for 2 months drawn by A in full settlement in his debt. On 18 January 17, A endorsed the bill to his creditor C. The bill was duly met. The date of maturity pass journal entry, ठीक है। अब जो B ने बिल लिया था A से, ठीक है, B owed to A, right? So A here is the receiver of bill. So in the books of A we are preparing journal entries. So after that, on the maturity date on 18 January, the same bill was endorsed to C. बेटा इंडोर्स का मतलब होता है किसी और अगले बंदे को देना। अब B ने A को बिल दिया था जनवरी 15 को, 18 जनवरी को इंडोर्स कर दिया उसने किसको? C को, राइट। इंडोर्स मीन्स होता है ट्रांसफ़र करना बिल को। तो पहले तो आप बिल क्रिएट कर लीजिए। ऑन बिल वॉज 5000, ओके, डिस्काउंट अलाउड वॉज 1000 बिकॉज 5000 का उसने बिल एक्सेप्ट करा ना, तो 1000 डिस्काउंट में आप डाल दीजिए। टू बी, ओके, 50 100 बिल एक्सेप्टेड, B accepted the bill, okay. After that, on 18, B transferred this bill to C, so C account debit to bill receivable. Till here is it clear? Any problem? No problem. Now come in the journal of B beta. तो in the B's journal on 15 January A account debit, A के पास बिल गया ना, B को पेमेंट करनी है टू बिल पेबल एंड 1000 विल बी डिस्काउंट रिसीव, तो 50000 विल बी डेबिटेड हेयर, ओके। सो नोट डाउन दिस एंट्री, A अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके, एंड narration will be bill drawn by A and accepted, and on 8 March it will be paid, ओके। जो भी ड्यू डेट आएगी आपकी बिल, देखिए ड्यू डेट कैसे निकलेगी फिर से बता देता हूँ। बिल वाज एक्सेप्टेड ऑन 15 जनवरी फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, तो 15 फरवरी, 15 मार्च, तो 15 फेबररी एंड देन आफ्टर दैट 15 मार्च, मार्च में हो जाएंगे 3 डेज ग्रेस पीरियड, तो 16 17 एंड 18 विल बी द ड्यू डेट। ऑन ड्यू डेट बिल पेबल टू कैश अकाउंट। टिल हियर इज इट क्लियर? नोट डाउन नरेशन ऑल्सो बिल ड्यू ऑन maturity, but
अब now we have to prepare C's journal also. Why? Because on 18 January A endorsed bill to C, so bill receivable account debit to A, this is 5000. Okay, so bill received by from A को से रिसीव हुआ, तो जो बात थी वो लिख दी. तो यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताओ, ज़रा नोट कर लीजिए. मैच्योरिटी डेट समझ में आ गई किस तरह से. जनवरी 5 का बिल था एंड दिस वाज ड्यू ऑन 15 जनवरी, एंड आफ्टर दैट 15 फरवरी, 15 मार्च एंड 16, 17, 18 मार्च विल बी द ड्यू डेट. ओके, नाउ इफ़ यू प्रिपेयर द जर्नल ऑफ सी बेटा, तो सी वाज द पर्सन फ्रॉम टू होम बिल वाज इंडोर्स्ड बाय ए. सो on 18 bill receivable account debit to A 5000 bill receivable from A. Okay, and March 18 आप ड्यू ऑन मैच्योरिटी पे किसी को भी ट्रांसफ़र बेटा बिल हो जाए उससे कोई मैटर नहीं, फ़र्क पड़ता है. बिल जो ड्यू है वो मैच्योरिटी पर ही आकर के होगा. ओके, सो हेयर आप सी को पेमेंट मिल जाएगी तो कैश अकाउंट बिल बी डेबिटेड. ओके, टू बिल रिसीव. अब सी को क्यों मिल रही है भाई, बी ने तो बिल दिया था ना, और ए को मिला था, ए ने किसको दे दिया, सी को. दैट इज़ वाई इन द सी जर्नल कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड ऑन 18 मार्च. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि ए के अकाउंट में कैश अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा है. ठीक है, वहाँ पे सी डेबिट हो जा रहा है. क्यों हो जा रहा है? बिकॉज दिस बिल इज इंडोर्स टू सी. ओके, सो नोट डाउन दिस थिंग, कीप इन योर माइंड. इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम बेटा ना, तो directly you make a phone call to me. I will explain all the things again and again, I'm telling you. But if you will study properly in 11th, then only you will be able to solve numerical section in 12th class. Otherwise तो बेटा there is a great problem. This is not your 10th class. ठीक है, जैसे मौज में पास हो गए, in 12th तो you can not pass बेटा. You have to work hard, and in accountancy तो mostly 100% you have to work, right? अकाउंट्स में तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी. ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे. ओके, नोटेड. नाउ सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 बेटा. ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन. ऑन 10 जनवरी 17, कितनी डेट को है, 10 जनवरी, ए सोल्ड गुड्स टू बी. मीन्स ए ने गुड्स को बी को सेल कर दिया फॉर 12,000. ऑन दैट डेट बी एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अप बाई हिम बाई ए एट 2 months फॉर 12,000. कितने मंथ के लिए, 12,000 के लिए. 12,000 का बिल था, राइट. पहले गुड्स बेचे गए, फिर बिल बना और एक्सेप्ट कर दिया गया. ए रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट उसने रखा, एंड सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, और कलेक्शन के लिए भेज दिया गया. इन कोर्स ए रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक दैट द बिल हैज़ बिन ड्यूली मेट. ठीक है, उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जो बिल है वो ड्यूली मिल चुका है, किसको, ए को. ओके, सो वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज. सो आई थिंक यू कैन पास जर्नल एंट्रीज प्रॉपरली. देर इज़ नो प्रॉब्लम टू पास. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर एस जर्नल. इन द बुक्स ऑफ ए यू विल प्रिपेयर पास जर्नल एंट्री एज, जैसे दोनों क्वेश्चन में मैंने करी उसी में. ओके, उसके बाद इन द 20 बुक्स यू हैव टू प्रिपेयर. एंड 10 जनवरी है, कितने मंथ के लिए बना था, 2 months के लिए. सो व्हाट विल बी द ड्यू डेट, 10 फरवरी, 10 मार्च, 11, 12, 13 मार्च विल बी द बेटा ड्यू डेट. कितनी हो जाएगी, इट इज 13 मार्च ही हो जाएगी ना, 13 मार्च विल बी द ड्यू डेट. ओके, so in the homework you have to solve question number 9, 10, 11. Okay, thank you students for watching this video. Bye bye, take care.